So we'll be starting with the Class A chopper fed DC motor drive. So this is the circuit that shows the connections of a Class A chopper fed DC motor drive. It comprises of a source of supply. We have a switch, a freewheeling diode, and then we have our RLE load. A Class A chopper fed DC motor drive, it works in the first quadrant. So here your output voltage as well as your current, it will be positive. So this polarity we will consider as positive, and the current in this direction, that will be considered positive. So for the analysis purpose, we can ignore this capacitor. Yeah. The capacitor is connected so that we have a smooth DC waveform. So when your switch is on, so in the first mode, when your switch is on, we will have a circuit like this. So when your switch is on here, the switch is on. So what we are seeing is that the supply, it is directly, your load is directly connected across the supply. So since your load is directly connected across the supply, so your output voltage will be equal to the input voltage. One more thing, we have an inductor here. So when the current flows through this circuit, the inductor starts charging. So when the inductor starts charging, your current I naught, it will start rising. So here, when you turn the switch on, your output voltage, this will be equal to the input voltage, and the current will start rising. So this is your first mode when your switch is on. Now in the second mode, just turn the switch off. So when the switch is off, so we'll be having a circuit like this. अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो आपका इंडक्टर था, इंडक्टर आपका चार्ज हुआ था. तो जैसे अब हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इतना सर्किट आ रहा है. अब इंडक्टर क्योंकि आपका चार्ज हुआ था, सो नाउ द इंडक्टर हैज टू डिस्चार्ज. अब क्योंकि इंडक्टर को डिस्चार्ज होना है, सो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है. तो क्या होता है, आपका इंडक्टर, इट विल रिवर्स इट्स पोलैरिटी and it will start discharging. So current will flow in this direction. तो अगर आप देखोगे, this is positive, this is negative. So because of this inductor, ये जो आपका diode है, it becomes forward biased. So when it becomes forward biased, now inductor के पास एक path है to discharge. So जो आपकी अभी current है I naught, it will start decreasing because the inductor is discharging. So अब क्या होगा, आपका I naught, it will start decreasing. और जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी, सो आप यहां पर देख सकते हो, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द दिस डायोड. सो दैट इज 0. सो योर आउटपुट वोल्टेज विल बी 0. तो पहले केस में क्या होगा आपका, जब आपका स्विच ऑन होगा, द whatever is our input voltage, that will be equal to the output voltage. और इंडक्टर जो होगा, इट विल स्टार्ट चार्जिंग, सो करंट विल इंक्रीज. एक बार इंडक्टर अब आपका चार्ज हो गया, तो जैसे आप स्विच को ऑफ करोगे, अब इंडक्टर को डिस्चार्ज होना है. तो डिस्चार्ज होने के लिए क्या होगा, इंडक्टर विल रिवर्स इट्स पोलैरिटी, करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन. इस इंडक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी एंड आई नॉट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इंडक्टर विल डिस्चार्ज. सो सेकंड मोड जो है, व्हेन द स्विच इज ऑफ, योर वी नॉट, इट विल बी 0, और जो करंट है, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो आपका जो इंडक्टर है, इट इज डिस्चार्जिंग. तो आपको जो एवरेज वोल्टेज मिलेगी, और एवरेज वोल्टेज विल बी the on time divided by the total time period. So t on plus t off, this is t. So your average voltage will be t on upon t times the input voltage. So we can write your average voltage will be equal to alpha times v input, where alpha is the duty cycle और t आपका time period है.
तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपका स्विच हमेशा ऑन रहता, कि अगर आपका स्विच हमेशा ऑन रहता तो आपकी आउटपुट, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज आती, योर आउटपुट वोल्टेज वुड हैव बीन इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि अब आपका ये जो इंडक्टर है, योर इंडक्टर, सॉरी, बिकॉज आपका आप स्विच को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ ऑन रख रहे हो, तो आपको वोल्टेज इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज वी आर टर्निंग ऑफ द स्विच, वी आर टर्निंग ऑन द स्विच, अब हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें बस इतनी मिल रही है। सो वी कैन सी के जो आप जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कम मिल रही है। द मैक्सिमम वोल्टेज दैट यू कैन गेट दैट इज दिस। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखोगे, आप एवरेज देखोगे तो एवरेज विल बी स्लाइटली लेसर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूटी साइकिल। तो इसीलिए वी से दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। नाउ we'll consider another case जहां पर हमारा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड आता है। तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में क्या है, मे बी द साइज ऑफ द इंडक्टर इज स्मॉल। तो यहां पर क्या होगा, ये जो हमारा फर्स्ट केस था जब हमारा स्विच ऑन होता है, सो व्हेन द स्विच इज ऑन योर आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, और जो करंट है इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज द इंडक्टर इज चार्जिंग। मे बी बिकॉज इंडक्टर का साइज स्मॉल है, सो इट विल, व्हेन इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, तो ये कंप्लीटली डिस्चार्ज कर जाएगा। सो इंडक्टर आपका जब कंप्लीटली डिस्चार्ज कर लेगा, तो अब आप देखिए, अगर आप ये वाला सर्किट देख रहे हो तो इंडक्टर ने अपनी पोलैरिटी चेंज की और करंट डिक्रीज हो रही थी। तो बिफोर आप अपने स्विच को फिर से ऑन करती, इससे पहले ही आपका इंडक्टर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। तो अगर अब आप ये सर्किट देखोगे, इस सर्किट में द ओनली सोर्स इज ई। अगर आप देखोगे ई में, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। इंडक्टर जो है दैट इज कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो इस ये जो आपका बैक ईएमएफ है, इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका डायोड है दिस विल बी रिवर्स बायस्ड, स्विच भी आपका ऑफ है। तो आपको आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू ई, क्योंकि आपके पास बस इतना ही अब आपको सर्किट मिलेगा। सो यू विल बी हैविंग ए सर्किट लाइक दिस। सो इन द केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड हमारे पास ऐसा केस बन जाएगा। यहाँ पर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज द बैक ईएमएफ। तो इस अक्रॉस दीज टर्मिनल्स आपको क्या मिलेगा, यू विल बी हैविंग जस्ट ई। सो वी नॉट विल बी इक्वल टू ई। तो जब आपका स्विच ऑन होगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, करंट विल राइज। नाउ क्योंकि आपका इंडक्टर का साइज इट इज स्मॉल, सो इट विल डिस्चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, बिफोर यू टर्न ऑन द स्विच, उससे पहले इट विल कंप्लीटली डिस्चार्ज। और जब ये कंप्लीट डिस्चार्ज होगा, एक ऐसी हमारे पास हमारा एक ऐसा सिनेरियो बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, योर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द बैक ईएमएफ ई। उसके बाद स्विच को आप जैसे ही ऑन करोगे, वंस अगेन जो आपका आउटपुट वोल्टेज है दिस विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, करंट विल अगेन स्टार्ट राइजिंग एंड देन इंडक्टर विल डिस्चार्ज, करंट विल डिक्रीज। लेकिन आप इससे पहले स्विच को ऑन करो, उससे पहले ही आपका इंडक्टर जो होगा वो इट विल कंप्लीटली डिस्चार्ज, करंट विल बी जीरो। वंस अगेन आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द बैक ईएमएफ।
सो आपको डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ये ऐसी वेव फॉर्म मिलेगी, और अगर कंटिन्यूस कंडक्शन होगा तो उसमें आपको ये बैक ईएमएफ ई नहीं मिलता है, यू विल बी हैविंग वोल्टेजेस लाइक दिस. सो दिस इज अबाउट योर क्लास ए चॉपर फेड डीसी मोटर ड्राइव. अगर आप क्वाड्रेंट ऑपरेशन देखोगे, योर वोल्टेज इज पॉजिटिव, द current is positive. So this class A chopper, it works in the first quadrant. So such a chopper, it supports forward motoring. So अगर आप quadrant operation देखोगे, here you have the current, voltage. So your voltage is positive and your current is also positive. So your drive, it supports forward motoring. So this is all about your class A choppers. So we'll see class B choppers in the next class.